हाँ जी, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਭ। ਲੌਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੌਸ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੌਸ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਸ਼ॉपकीपर ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ॉप ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ॉप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੌਸ ਕਮਾ ਕੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ SP ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CP ਦੇ ਨਾਲੋਂ। समझ आ गया? क्लीयर है ये तो चीज़? अच्छा, और जो वो लॉस होएगा, फॉर एग्जांपल वो चीज़ लैके आया 100 रुपए की और उन्हें फर्दर बेची किन्ने दी? 80 रुपए की, तो उन्होंने 20 रुपीज़ की होया अपने पास लॉस होया। मतलब लॉस के सिनेरियो दे विच हमेशा CP की होएगी? ज़्यादा होएगी विद रिस्पैक्ट टू SP। क्लीयर है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ, ठीक है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਔਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ CP ਇਨਟੂ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ कि जिन्ना प्रॉफिट होया रुपीज़ दे विच उहनूं उपर रख के CP नीचे रख के इनटू 100 आपां काहदे लई लगाने आ? क्योंकि परसेंट कड्ढना है, ठीक है। पर तुसीं ये फॉर्मूला नहीं याद रखना हैगा, ठीक है, क्योंकि आपां जिन्ना भी मैथ्स कीता है सारा विदाउट फॉर्मूले नाल ही कीता है। तो तुसीं की चीज़ ध्यान रखनी है कि जदों भी तुसीं लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है या लॉस होवे या प्रॉफिट होवे, वो हमेशा किहदे उपर कैलकुलेट होएगा? CP दे उपर कैलकुलेट होएगा। समझ आ गई? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ CP ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਸੈਂਟਲੀ 100 ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रॉफिट या लॉस परसेंट कढ़ना है तो किहदे उपर निकलेगा? CP दे उपर निकलेगा, कदे भी सैलिंग प्राइस दे उपर नहीं निकलेगा। हुण देखो ਇਹਦਾ कारण की है बेसिकली, जिवें मान लो एक दुकानदार कोई पैन 100 रुपए का लैके आया, उन्हें उसनूं 120 रुपए दे विच बेचिया, तो उन्होंने 20 रुपए का की होया? प्रॉफिट होया। तो हुण प्रॉफिट किवें चेक करेगा? प्रॉफिट 120 नाल थोड़ी चेक करेगा, प्रॉफिट किहदे नाल चेक करेगा? 100 दे नाल। कि मैं 100 रुपए की चीज़ लैके आया और मैनू 20 रुपए प्रॉफिट हो गया, तां करके हमेशा प्रॉफिट और लॉस किहदे उपर कैलकुलेट होएगा? कोस्ट प्राइस दे उपर कैलकुलेट होएगा। ये चीज़ हमेशा तुसीं की रखनी है? ध्यान दे विच रखनी है। तुहानूं क्वेश्चन की पूछेगा कि दसो लॉस परसेंट किन्ना, तुहानूं दस देगा CP इन्नी है, सैलिंग प्राइस NI, दसो जे प्रॉफिट परसेंट है या फिर लॉस परसेंट है। मतलब तुहानूं रुपीज़ दी टर्म च नहीं पूछेगा,
ठीक है। जे 100 120 देके तुसीं सीधा कहोगे कि 20 रुपए की हो गया जी, ਉਹਨੂੰ प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, ठीक है। बट ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ, लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ प्रॉफिट एंड लॉस ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। क्लियर है। चलो ਹੁਣ कुछ क्वेश्चंस ने ਇਹਦੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मूव ਕਰਦੇ ਆ। लो शुरू हो जाओ। हुण देखो की है इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। और उस तो बाद ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ परसेंट ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਲਾਸ परसेंट ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शुरू कर दो जी, जल्दी जल्दी करो क्विकली। 1 मिनट दे रही हाँ, 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ क्वेश्चन ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। आई थिंक कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ और पेपर यूज ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ओके प्लीज कीप क्वाइट, रिकॉर्डिंग चल रही है। जल्दी कर दो जी शुरू। बाकी जिन्होंने फाइल इतों विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है उन्होंने फाइल भेज भी दी है, ठीक है। थोड़े को आ गई होएगी, तुसी उथों भी कर सकते हो। पहला ट्राई करो, अदरवाइज फिर आप डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन दे विच देखो सीपी मतलब कोस्ट प्राइस, उन्हें कोई चीज किन्ने दी खरीदी 200 रुपए दी और बेच किन्ने दी दित्ती 240 रुपए दी। तो सीधा सीधा आपां नूं पता लग रहा कि 40 रुपए की हो रहा, उन्होंने प्रॉफिट हो रहा। हुण आपां नूं प्रॉफिट दा पता लग गया, हुण आपां ने की कढना, प्रॉफिट परसेंट। तो आपां ने की गल कीती सी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस चीज दे उपर कढिया जांदा है, सीपी। तो 40 रुपए की हो गया प्रॉफिट, सीपी कितनी है 200 × 100। इत्थों कर लो कितना आ गया 1/5। 1/5 की हुंदा, देखो 100% की लोड़ नहीं, 1/5 की हुंदा 20%। याद है ना, परसेंटेज दे उहदे विच कीता 1/5 कितना हुंदा 20%। सीधा हो गया इत्थों। सैकेंड ऐदा ही देखो ओदी सीपी सीगी कितनी 360, कोस्ट प्राइस सीगा 360, उन्हें आर्टिकल अगे वेच किन्ने दा दिता 300। कि उन्होंने प्रॉफिट होया या लॉस होया, लॉस। किन्ने दा लॉस होया 60। तो 60 किहदे उपर चेक करांगे, बस इत्थों कर लो कितना आ गया 1/6। 1/6 कितना हुंदा 16.1666%। सीधा आ गया, ठीक है। बाकी जिन्होंने ये नहीं पता तो वो ऐदा कर सकते हैं, जिवें देखो 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड कर लो, पता ही लग जाएगा थोनों, ठीक है। सॉरी ये बन जाएगा 100/6, क्योंकि ये तुसी मल्टीप्लाई भी तो करोगे। 1 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 100/6, इनू डिवाइड कर लो, थोड़ा इन्ना आ जाएगा 16.66%। क्लियर है। ऐदा ही अगे वाले क्वेश्चन ये तुसी सारे कर लोगे, ठीक है। तो हुण देखो ये आंसरस बाकी बिल्कुल नीचे ने, तुसी आंसर लिए हमेशा रौला पाने हो, ये ना नीचे लास्ट पेज दे विच आंसर भी दिते हुए ने। अच्छा हुण देखो की दिता होया, हुण देखो की है। हुण तक आपां ने की सीखिया, आपां ने कितनियां टर्म्स सीखियां। एक आपां ने सीपी दी गल कीती, ध्यान नाल समझ लो। पहला एक आपां सीपी दी गल कीती, एक आपां एसपी दी गल कीती, एक आपां ने लॉस परसेंट दी गल कीती या लॉस कह लो, एक आपां ने प्रॉफिट परसेंट दी गल कीती। फिलहाल जिहड़े क्वेश्चन ने वो इन्हां चारां चीज़ां दे उपर ही घुमणगे। समटाइम्स तुहानूं की दे देगा, सीपी दे देगा और नाल लॉस परसेंट दे देगा, पूछ लेगा एसपी की है। समटाइम तुहानूं एसपी दे देगा नाल प्रॉफिट परसेंट दे देगा, पूछ लेगा सीपी की है। मतलब 4 पैरामीटर दे उपर ही सारी गेम घुमाएगा। समझ आ गई ना। तो इनू ट्राई करो, तुसी किवें करोगे, इस चीज़ का भी एक बेसिक है, पर पहला क्वेश्चन तुसी ट्राई करो, उस तो बाद आपां इनू डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करो करन दी, जिहड़ा फर्स्ट वाला टेबल दिता होया। देखो सीपी दिती हुई है 350, एसपी आपां ने कढनी है, प्रॉफिट परसेंट दिता होया 30%, लॉस परसेंट है नहीं, या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। ये तो चीज़ समझ दो, एक चीज़ के उपर या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। मतलब 350 के उपर उन्होंने 30% की होया प्रॉफिट होया, आपां ने की कढनी है एसपी। 1 मिनट लो और इनू कैलकुलेट करो, उस तो बाद आपां डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे?
ओके ओके ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੀਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੋਰਥ ਕਰਨ 550 ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 550 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੋਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ $500 आ रही है। ओके ठीक है ओके। हाँ जी जतिन जी हो रही है ओके, कोई गल नहीं करते आप। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फस्ट एंड फोर्थ होया किसी दा? ओके गुड। हाँ जी अपना लास्ट नहीं होया? हाँ जी सर थोड़ा फस्ट हो गया ओके। अच्छा चलो आ जाओ हम वापस, छड़ दो। जिन्हों का हो गया बहुत अच्छा, जिन्हों का नहीं होया, जिन्होंने आंदा भी है एक बार समझ लो, जिन्होंने कर भी लिया वो भी एक बार समझ लो। ठीक है की चीज़ है देखो हुण, देखो एक चीज़ हमेशा चीज़ समझो। आपां नूं की दिता होया कोस्ट प्राइस दिता होया 350। उन्हें कहा ਹੁਣ ਇਸ चीज़ ਨੂੰ ना इमेजिन कर लो कि कोई शॉपकीपर है वो अपनी शॉप के लिए कोई आर्टिकल्स लैके आया 350 ਦੇ। ठीक है उस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ 30% प्रॉफिट होया। ਹੁਣ देखो 30% प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ? सेल ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, मतलब सैलिंग प्राइस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 30% ਦਾ प्रॉफिट होएगा। मतलब 100% ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ। देखो 30% ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ 30% ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 130। 100% ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100% ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਪੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 350 ਦੀ 100% ਹੈ ਔਰ 30% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ है ना, यही चीज है। तो आप इन्हू दो टर्म्स दे विच तोड़ लिया। 100% जो सीपी है 30% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ प्रॉफिट है। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। देखो ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੀਪੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, समझ रहे हो ना? ਹੁਣ 350 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ प्रॉफिट ਕਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 350 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 350 ਦਾ 130% ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस। ਆ ਕੀ ਹੈ ਸੀਪੀ, ਰਾਈਟ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੀਪੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ 130 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 130 ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 350 ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 350 ਦਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਔਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? 455 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ओके जी ओके। हुण आपां डिस्कस करते हैं, प्लीज कीप क्वाइट। हुण आपां डिस्कस करते हैं, इधर देख लो फोर्थ। हुण देखो फोर्थ क्यों आपां डिस्कस करते हैं क्योंकि फोर्थ दा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ दे विच उहने आपां नूं की दिता है, प्लीज कीप क्वाइट, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ जी लास्ट इधर देख लो, बाद च आपां कर लांगे ठीक है जो भी थोड़ा डाउट है। देखो फोर्थ जिहड़ा सम है उहदे विच हुण आपां नूं सीपी दी गल ना करके की गल कीती हुई है एसपी दिता होया। ठीक है एसपी आपां नूं गिवन है, नाल आपां नूं की है प्रॉफिट परसेंट दिता होया 10%। हुण देखो मतलब दुकानदार कोई चीज़ लेके आया होएगा वट एवर XYZ वैल्यू दी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 10% ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ 550 ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 550 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਹੈ, समझ रहे हो, और प्रॉफिट कितना 10%। कोई चीज अपने आप च सीपी कितनी होएगी अपने आप च 100%, तब प्रॉफिट ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ परसेंटेज ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 110%। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ परसेंटेज ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 110% ਔਰ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 550। ਜੇ 110% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 550 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ 550 ਬਾਈ 110 ਔਰ 100% ਸੀਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100%, ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ। मतलब हुण तुहानूं की समझ आया कि जदों भी सैलिंग प्राइस दिता होएगा सैलिंग प्राइस दे विच प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ां ऐड होणगियां, ठीक है। और जदों भी तुहानूं सीपी दिता होएगा तो उहदा जिन्ना भी प्रॉफिट होएगा उन्ना वधा के तुसीं परसेंटेज वाइज की कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा हुण ये वाला क्वेश्चन करो, आ वाला नैक्सट क्वेश्चन 360 वाला, जिहदे विच एसपी दिती हुई है 360 और लॉस परसेंट दिता होया 25। ट्राई करो इस क्वेश्चन नूं, देखो बेस बनाना है 75% ऑफ x इक्वल टू 360। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। हाँ जी ये भी सही है, तुसी फॉर्मूले च पुट करती ना सारियां चीज़ां, ये भी सही है। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 110% ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ एसपी वाला ਹਾਂਜੀ। ओके एक मिनट बाद ना वो वाला जो क्वेश्चन समझाऊंगी वो देखियो, वो तुहानूं समझ आएगा मे बी, ठीक है। हुण जिहड़ा वाला क्वेश्चन आपां डिस्कस करांगे है कित्थे चो, हाँ 34 30 है, हो गया जी। जदों देखो आप सैलिंग प्राइस तो समझते हो ना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20% ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜੂ 120%, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 120% ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਹੈ। समझ आया ना, हाँ परसेंटेज है। हुण देखो आप सैलिंग प्राइस नूं दो तरीके नाल देख रहे हैं, सैलिंग प्राइस नूं परसेंटेज दी वाइज देखिया कितना हो गया 120 रुपए, पर सैलिंग प्राइस नूं रुपीस दी फॉर्म च देखिया 120 रुपए। मतलब ये दोनों नूं इक्वेट क्यों किया, क्योंकि दोनों चीज़ां सेम ने, ये परसेंटेज की फॉर्म च है, ये रुपीस की फॉर्म च है। जे 120% की वैल्यू 120 है तो 1% की वैल्यू इनू डिवाइड कर दो 120 के नाल कितनी आ गई 1। 100% की वैल्यू कितनी होगी 1 नू 100 के नाल मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है, जो कि थोड़ी की होगी सीपी होगी। क्लीयर है, समझ आया हुण। अच्छा ऐदा ही सेम सिनेरियो किहदे विच एग्जिस्ट करेगा, थोड़े लॉस दे विच एग्जिस्ट करेगा। हुण लॉस दे विच किवें कीता क्वेश्चन कीता जी सबने, की आंसर आया 450 में 480। हाँ जी 360 वाला। देखो मैं स्ट्रैस दे रही हाँ, मेरी गल सुनो, मैं वैसे जे देखा जाए जेडे स्टूडेंट्स नूं थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस आंदा उन्होंने तो ये बच्चों वाली चीज़ां लगदियां होंदियां कि मैडम टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, बट जिन्होंने नहीं आंदा उन्हों का ये बेस बन रहा है, क्योंकि जे तुहानूं ये चीज़ समझ नहीं आई तो तुसीं अगे वाले क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ नूं बहुत चंगी तरीके दे नाल समझ लो। हुण देखो ध्यान नाल समझो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपां। सैलिंग प्राइस हैगा अपना 360, तुसीं लिखना नहीं, मैं तुहानूं समझाउण लई लिख रही हाँ। सैलिंग प्राइस हैगा 360 ते उन्हें लॉस देता अपने आपां नूं 25%। सारे इधर बोर्ड वाल देखो, किसी ने कॉपीज़ के उपर नहीं देखना, जिहदा हो गया वो भी देख लो, ठीक है। हुण देखो उन्हें पूछया कि आपां तो सीपी। हुण देखो एक चीज़ ये तो तुहानूं पता है कि चाहे अपना प्रॉफिट हो रहा चाहे वो लॉस हो रहा, वो किहदे विच इंक्लूडेड होएगा, सैलिंग प्राइस। सेल करन तो बाद ही आपां नूं प्रॉफिट या लॉस होएगा। तो मतलब
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 25%। 25% ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ 100% ਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100% ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 25% ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਵੇਚੀ ਉਹ 75%। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस परसेंटेज वाइज कितना हो गया 75%। रुपीज वाइज कितना है 360। 1% की वैल्यू 360 बाय 75, 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, इत्थे आ गया 120, मतलब कितना आ जाएगा 480। क्लियर है, समझ आया या नहीं आया, ऊपर दी लंघ गया, क्लियर है, सिंपल ही है ये। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 120 ਬਾਈ 100 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੌਰੀ 130 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 350 ਦਾ 130% ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆ ਜਾਏਗਾ। क्लियर है, समझ आ गया। चलो हुण बेस अपना क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन शुरू कर दो जी। थर्ड एंड फोर्थ दोनों थोड़े करने वाले क्वेश्चन ने। वेरी गुड, अगला कर दो, अगे अगे शुरू कर लो, सारे कर ले, अगे करो फिर। हाँ जी करो जी, हो गया। हो रहे हैं सर अपने, समझ आ रही है, ओके। एक मिनट है जी, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, उस तो बाद फोर्थ आंसर बाकी सारे नीचे दिखती हुई है बुकलेट दे। ठीक है, तो मैं बेसिक समझाता, उस बाद तुसी खुद प्रैक्टिस करनी है। एक मिनट है, थर्ड क्वेश्चन कर लो, उस तो बाद आप फोर्थ ते मूव करांगे। जिन्हां दा हो गया ठीक है, अदरवाइज आप डिस्कस करांगे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया थर्ड क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है, गुड। सारी करनी है। हाँ जी हाँ जी, करो करो। नहीं फिफ्थ होया नहीं, किथे दिता है, केड़ा वाला जी? सिक्स्थ कह रहे हो अमन? वेट करो, पहला थर्ड ते फोर्थ कर लीए, फिर ही सिक्स्थ मूव करांगे। लो जी, थर्ड देख लो, जिन्हां दा हो गया, मतलब अगर तुहानूं डाउट आ रहा क्वेश्चन लीव करके अगले ते मूव कर लो। हाँ जी, हुण देखो जरा, सही है जी। अगर थोड़ी स्क्रीन ब्लर आ रही है, अगर स्क्रीन ब्लर आ रही है तो जिहड़ी तुहानूं फाइल सेंड की हुई है तुसीं उहदे विचों भी देख सकते हो, बाकी मैं अपने वालों होर जूम कर देनी है। ठीक है जी, लो जी देख लो। हुण थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस करन जा रही हूँ, जिन्हां दा हो गया ठीक है, जिहड़ा समझना चाहता देख लो। कहंदा बाय सैलिंग आ कार फॉर ₹572, इत्थों आपां नूं पता लग गया कि जिहड़ा कार दा सैलिंग प्राइस है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो कितना है जी 572। अ मैन गेन्स 20% प्रॉफिट, मतलब गेन होया मतलब प्रॉफिट होया, तो प्रॉफिट नूं उन्हें किवें देता, परसेंट दी फॉर्म च देता, मतलब 30% की होया। जिन्हें आवाज़ करनी क्लास तो बाहर चल जाओ, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या तो अपने क्वेश्चन करो या बोर्ड ते करो। देखो बस, जिन्हें गल्लां करनियां बाहर चल जाओ। सैलिंग प्राइस हैगा 572, ठीक है, और प्रॉफिट कितना 30%। तो हुण वही लॉजिक है कि जे सैलिंग प्राइस दे विच प्रॉफिट की होएगा, इंक्लूडेड होएगा, मतलब यह परसेंटेज दे विच किन्ने परसेंट की वैल्यू होएगी, बोलो किन्ने परसेंट की वैल्यू होएगी परसेंटेज दे विच? 130% दी, पर एक्चुअल रुपीज़ दी फॉर्म च 572, तो 1% की वैल्यू कितनी होएगी 130, 100% की आपां मल्टीप्लाई कर देंगे 100 दे नाल। जदों इहनूं करोगे 452, किन्ने बचे 452, तो कितना आंसर आ गया 440। थोड़ी की निकल आई अपने पास, सीपी है निकल आई आसी। क्लियर है, समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन? आई होप नहीं डाउट होएगा। सिंपल वही चीज़ थी जो टेबल च आपां ने कीती है, बट इत्थे तुहानूं की बना के दे दिता, उन्हें स्टेटमेंट बना के दे दी। क्लियर है, चलो हुण फोर्थ क्वेश्चन हो गया। देखो सिमिलर है, देखो सिमिलर है, देखो ध्यान नाल समझो, इत्थे मैं क्वेश्चन करवावांगी नहीं, सुनो ध्यान नाल। कहंदा इत्थे अमित ने एक अंब्रेला नूं सेल कर दिता,
680 रुपए का, मतलब सैलिंग प्राइस कितना दिता होया 680, जिदे विच ओनू किन्ने दा लॉस होया 15%, तो 680 परसेंटेज वाइज किदे बराबर होएगा 85%। ता मतलब सैलिंग प्राइस परसेंटेज दे विच कितना है 85%, एक्चुअल दे विच रुपीस च कितना है 680। 1% की वैल्यू कितनी निकली आएगी 680 बटा 85, 100% की वैल्यू कितनी निकली आएगी, इनू 100 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इनू कैलकुलेट कर लियो, आंसर कितना कह रहे हो 800, ठीक है। कैलकुलेट जो करोगे कटोगे तो आंसर की निकले आएगा 800, थोड़ा आंसर होएगा। क्लियर है? आई होप ये दोनों क्वेश्चन थोनों बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जोनू SP दिती हुई है नाल थोनू प्रॉफिट परसेंट देता, चाहे उन्हें लॉस परसेंट देता, थोनू SP परसेंटेज वाइज भी देखनी आनी चाहिए है, थोनू SP रुपीज की फॉर्म च उन्हें दिता ही है। बस इत्थे की देखना अपने SP नू परसेंटेज की फॉर्म च देखना है भी कितना है, चाहे लॉस है या फिर की है प्रॉफिट है। लो जी 5th क्वेश्चन करो। नहीं होया, चलो करो 1 मिनट लो 5th क्वेश्चन लिए, सारे ट्राई करो। हुण तुहानूं बेसिक जा क्लीयर हो गया, 5th 1 मिनट लो सारे करो, उस तो बाद आपां करदे रहूं डिस्कस। मनप्रीत जी नहीं आए 5th ऑनलाइन है मैम, मैम वैसे आंसर 800 प्लीज डाल दो। आई डोंट नो। एक नीचे देखो ना, स्क्रॉल करो, फाइल दे बिल्कुल एंड दे विच दिता होएगा 5th का आंसर 800 है, 800 दिता होया जी, 1600 तो नहीं है। नहीं मैं अच्छा 6 क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, 6 क्वेश्चन कह रहे थे हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। चलो कोई गल नहीं, देखते हैं आप इनू 6 क्वेश्चन। 6th हो गया, हाँ जी लास्ट डिंपल जी 6 क्वेश्चन हो गया, कितना कितना मैं हो गए, सारे हो गए 6 8 9 7 8 भी हो गए। ओके वेरी गुड। होया नहीं 5th करते हैं आप डिस्कस करते हैं, देखो जी किवें कितना कितने कितना वेरी गुड। 110 किदे बराबर करता तुसी 80%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 रुपए ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਤੇ 110 बटे 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ 5th ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सारे हो गए दिमाग की ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5th नहीं होया, कमाल ही हो गई। अच्छा चलो 5th क्वेश्चन देखो, जिन्हों का हो गया ठीक है, जिन्हों का नहीं होया 5th क्वेश्चन देख लो की कह रहा। कहना मैन सैल हिज टाइपराइटर एज 5% लॉस। देखो जो एवं कहता है तो थोड़े दिमाग च की आना चाहिए कि जी CP होएगी वो की होएगी 100% होंगी है CP, कोस्ट प्राइस हमेशा की होएगा 100%। तो उन्हें जिहड़ा टाइपराइटर वेचिया वो किन्ने दा लॉस, मतलब 95% की सी ओदी सैलिंग प्राइस की परसेंटेज की फॉर्म च मैंने सोच लिया दिमाग च, ठीक है। हुण अगे की कहंदा, इफ ही सैल्स इट फॉर ₹80 मोर, जेकर वो 80 रुपए ज़्यादा दे वेचदा दैन ही गेन्स 5%, तो उन्होंने 5% की हुंदा गेन हुंदा। फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट किवें कीता, जिन्होंने कीता है क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन 80 ਨੂੰ 10% ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ओके वेरी गुड, ओके ठीक है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा समझ लो इस क्वेश्चन। जिन्हों का हो गया ठीक है, जिन्हों का नहीं होया देखो ध्यान नाल समझो। हुण आप एक लाइन जी बना लेंगे हैं, ठीक है। इस लाइन के उपर आ किते की होएगा CP होएगा, प्लीज समझ लो। आ लाइन के उपर एक कोस्ट प्राइस होएगा, उन्हें की किया कोस्ट प्राइस की होगा अपने आप 100% होएगा। ये तो आप स्टार्टिंग तो ही बन के चल रहे हैं कि कोस्ट प्राइस की होगा 100%। उन्हें टाइपराइटर बेचिया 5% लॉस के हिसाब नाल, मतलब CP तो थोड़ा जा घट पैसों च बेचिया होएगा इत्थे, मतलब 5% का आ की है लॉस है। समझ आ गई? मतलब एक्चुअल CP इत्थे सीगी पर उन्हें लॉस बेचिया, मतलब इत्थे आके इन्नी वैल्यू के उपर उन्हें बेचिया। क्लीयर है? हुण वो कहंदा जे ओह इस नूं 80 रुपए ज़्यादा दे उपर बेच दिंदा, ठीक है
अगर 80 रुपीज़ ज़्यादा होर विच ऐड कर दिंदा तो उन्होंने 5% का गेन हुंदा। तो दूसरी सिचुएशन भी प्लॉट कर लो, तो दूसरी सिचुएशन च जे गेन होया तो वैल्यू सीपी तो कित्थे जाएगी, अगे जाएगी, मतलब उन्हें इत्थे वेचिया होगा और ये उपर उन्होंने कितना होया 5% गेन होया। समझ आ रही है की कह रही है मैं? मतलब टाइपराइटर नू पहला 5% घाटे ते बेचिया, सीपी तो पीछे होएगा, ठीक है, सीपी तो छोटी होएगी वैल्यू, फिर उन्हें 5% वाधे दे उपर बेचिया, मतलब इत्थे आ गया। हुण दोनों दे विच इत्थों तो लैके इत्थों रुपीज़ दे वाइज कितना डिफरेंस है 80 रुपए। मतलब जे ओह इत्थे सीगा, सुनो ध्यान नाल, वो इत्थे खड़ा सीगा, जे वो 80 रुपए ज़्यादा होर पा दिंदा, वेच दिंदा एक्स्ट्रा पाके, तां ओह इत्थे पहुंच जांदा। मतलब इत्थों तो लैके इत्थों तक दा जिहड़ा डिस्टेंस है किहदे बराबर है 80 रुपए दे। समझ रहे हो? तो 80% जिहड़ी हैगी है, सॉरी 80 रुपीज़ वो किहदी परसेंटेज वाइज किहदे बराबर आ गई 10%। आ इन्हां नूं काउंट कर लो, तो 10% जे की होएगा 80 दे बराबर होएगा, तो 100 तक पहुंचना तो इनू 10 नाल गुना कर दो। इत्थों एवें भी कर सकते हो, 1% कड्ढण दी लोड़ ही नहीं तुसीं किवें कड्ढोगे 1% बाय 80/10 और 100% मतलब इनू तुसीं 100 दे नाल गुना करोगे, जदों गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 800। मतलब ओदी सीपी कितनी सीगी 800 रुपया ओदी सीपी सीगी। समझ आ गया तो नहीं आया, ये ऊपर दी लंघ गया? वेरी गुड। अच्छा सीरियसली पार्टी होगी। अच्छा चलो फिर अगला करो, ये भी तो सेम ही टाइप है। हो गया की आंसर आया था 6 दा? 40। वेरी गुड, करो करो 1 मिनट लाओ, 6 क्वेश्चन करो, उस तो बाद आप अगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जिन्होंने 6 हो गया 7th भी करो। देखो ये एक चीज ध्यान रखनी है, इतने उन्होंने 80 रुपीज़ मोर किया भी, जे जिन्ना पहला पैसा सीगा जो उन्हें बेचिया सी 80 रुपए ज्यादा च बेचिया, तां आपां ने प्लॉट किया है कंडीशन। ठीक है, तुसीं ये नहीं मान लेना भी ये मतलब 5% लॉस जिवें आपां पहलां करदे आ, तो इहनूं थोड़ा की रखना ध्यान च रखना। हुण 6 क्वेश्चन करो। हो गया कित्थे आ गए? देखो चाहे क्वेश्चन ना 15 करो 16 करो, पर एक एक क्वेश्चन पूरा तसल्ली दे नाल कर लो। एक टाइम चाहे 15-16 ही क्वेश्चन कर लो, पर तसल्ली दे नाल होना चाहिए भी एक भी वर्ड कल्ला वर्ड थोड़े दिमाग दे विच तुहानूं समझ आना चाहिए भी वो की कह रहा। लिटिल बिट भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन च। करो 6 क्वेश्चन। 40 आ रहा, समझ आ गया ना हुण? सिक्स क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, एक बार मैं दस दिनी हाँ। सिंपल ओवी है कि वो की कह रहा, किसी मैन ने कोई आर्टिकल सेल किया 20% लॉस, मतलब आ जे सीपीसी वो तो पीछे उन्हें सेल किया, मतलब आ पार्ट की वैल्यू कितनी होएगी 20% है ना। सीपी अपने आप की हुंदा 100%। जे कहंदा अगर वो 12 रुपए ज़्यादा दे आर्टिकल होर 12 रुपए दे ज़्यादा बेच दिंदा, ही वुड हैव गेन 10%, तो मतलब सीपी तो उन्होंने 10% की हुंदा गेन हुंदा, तो इत्थे पहुंच जांदा। मतलब इत्थों इत्थे रुपीज़ वाइज वैल्यू कितनी है 12, वैसे कितना है, वेट एक मिनट सही कर रहे हैं ना आप, 30% है ना। 30% की वैल्यू किहदे बराबर आ गई 12, तो बाय 30 करके इन 200 कर लो, तो कितना आ गया 40 की आ गया, आंसर आ गया। बस प्लीज कीप क्वाइट। चलो अगे 7th करो। 7th लीग केड़ा वाला जी? 6 क्वेश्चन, हाँ जी ओके ठीक है जी। 6 क्वेश्चन देखो किवें होएगा, वही सिमिलर जो 5th च आपां कीता सी, सेम वही सिनेरियो है विच भी। वो कहंदा किसी आदमी ने कोई चीज़ है कोई आर्टिकल सेल किया 20% लॉस, मतलब जे लॉस से सेल किया, जे आ सीपी है इस तो किते पीछे जाके सेल किया होएगा, मतलब चीज़ वध च खरीदी है तो घट च बेची है। हाँ जी फिर शुरू हो गए तुसी, ठीक है, मतलब उन्हें इत्थे किते जाके की कीती होएगी, वो चीज़ सेल की होएगी, और ये जिहड़ा लॉस है वो परसेंटेज वाइज कितना है 20%, मतलब इत्थों पिछे तक आ वैल्यू कितनी है 20%।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ 10%। ਮਤਲਬ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 10% ਗੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, परसेंटेज की फॉर्म है बी आ सी 30 आ सी, तो 30% की वैल्यू एक्चुअल किहदे बराबर है 12 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 12/30 होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 12/3 इंटू 100। बस कर लो 3 4 12, आंसर कितना आ गया 40। क्लीयर है। मैं फिर दस रही हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बिन मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो लो जी 7 क्वेश्चन करो जल्दी क्विकली, 1 मिनट है। वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड। जिन्हों का हो गया 9th शुरू करो। अच्छा 9 क्यों नहीं होया, ट्राई करो एक बार दोबारा ट्राई करो मन, 9th भी होएगा, ध्यान नाल समझो इस क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है, 7th 8th 9th जल्दी करो क्विकली, फिर आप डिस्कस करते हैं। 7th करो, 8th करो, 9th करो। 10 ਦੇ 900 ਹੈ 900 ਪਿੱਛੇ 9 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ। हाँ जी बस एक कुछ सेकंड्स है, बाकी सब नूं दे रहे हैं ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 7th। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ मतलब दिमाग ही बहुत चलता है, कॉपी की लोड़ ही नहीं। सब कुछ दिमाग 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ वेरी गुड, बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है। 9% ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ रोड दा हो रहे हैं। हाँ जी अपने हो गया 7th, हो गया 7th अनपुल नहीं होया। लो जी जिन्हों का 7th नहीं होया तो देख लो, सिंपल है, देखो ध्यान नाल क्वेश्चन समझो की कह रहा। कहंदा जे एक मैन एक चेयर नूं 720 रुपए दे विच सेल कर दिंदा, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 25% ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾਓ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 720, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 25%। ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ परसेंटेज वाइज किहदे बराबर हो गया 75%। अरे 100% चो 25% कटवा लो, कितना हो गया सैलिंग प्राइस परसेंटेज वाइज 75% है, रुपीज वाइज कितना है 720। किथे गया लो देखो ध्यान दे नाल। ਹੁਣ देखो इत्थे थोड़ा जिहा तुहानूं एक होर नवां शॉर्टकट दस दी, सारे देखो प्लीज़, इत्थे थोड़ा एक होर चीज़ दस दी भी तुसीं किवें थोड़े स्टैप रिड्यूस कर सकते हो पेपर दे विच। देख लो सारे, कहंदा इत्थे ये तां चीज़ तुहानूं समझ आ गई कि 75% की वैल्यू किहदे बराबर आ गई। देख लो गल्लां बाद च मार लिओ 720 है ना, समझ आ गया। उस तो बाद उन्हें की किया कि जे उन्हें 25% गेन करना होवे, मतलब पहला 100% आपां कड्ढदे हुंदे आ, 100% की हुंदा सीपी, फिर सीपी दे उपर उन्हें 25% गेन कड्ढण नूं कह दिता, तो फिर कितना कहंदा 25% गेन तो बाद कितना मतलब सीपी होएगा, मतलब सॉरी होएगा नवा प्राइस की होएगा। तो देखो इहनूं किवें कर सकदे हो, जे 1% की वैल्यू कितनी होएगी 720/75, इहदा समझ रहे हो। हुण 100% जाण दी बजाय तुसीं इहनूं सीधा ही इत्थे 125% कर लो, ये किवें आएगा, इत्थे आ जाएगा 720/75 गुणा 125। हुण देखो 125 च 100 तो हैगा ही हैगा, 25 आपां ने एक्स्ट्रा जिहड़ा गेन है इत्थे लगा ले, मतलब एक स्टैप आपां ने की कर दिता रिड्यूस करता। समझ आया। हुण देखो इत्थे आ जाओ 25 दिया 75, 25 5 125, इनू कर लो 3 दूनी 6 4, तो 24 5 कितना होंदा 120, मतलब 1200 की आ गया थोड़ा नवा ओह आ जाएगा प्रॉफिट नू इनक्लूड करके। समझ आ गया। तो नवा जिहड़ा सैलिंग प्राइस वो कितना बन रहा 1200 रुपए। समझ आ गया ना, एक स्टैप आपने की करता रिड्यूस करता। जे हुण मैं तुहानूं स्टार्टिंग च ये चीज़ दस दी फिर तुहानूं समझ ना आंदा, पर हुण तुहानूं समझ आ रहा। ठीक है, क्लीयर है। हाँ जी 7th जिन्हों का डाउट सीगा क्लीयर है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। चलो 8th करो जी, फिर आराम नाल ही करांगे, कोई गल नहीं आपां। ठीक है 8th करो, चंगी तरीके नाल मैथ कर लो बस, उस तो बाद दोबारा नहीं चैप्टर मिलना थानू, प्रॉफिट एंड लॉस मैं दोबारा नहीं करवाना। जिन्ने क्वेश्चन कर रहे हो चंगी तरीके नाल कर लो। 8th क्वेश्चन करो, हुण आपस डिस्कस करो कि आंसर सही है या नहीं है।
ਜਿਹੜਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ 25 ਤੇ 25 ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ 80 ਰੁਪਏ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 720 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 5% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ 80 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 720 ਚ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 25% ਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 75% ਹੈ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ 75% ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਦਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਇੱਕ 25% ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦਾ 125% ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 8th ਹੋ ਗਿਆ, 8th ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਓਕੇ ਇਹ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਨ ਸੈਲਿੰਗ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਫॉर ₹48, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, वन लॉसेस 20%, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 20%, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 80%। 80% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੀਪੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ 100% ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੇਨ 20%, ਸੀਪੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਸੀਪੀ ਦਾ ਅੱਗੇ 20% ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ। 48 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 20% ਦਾ, ਮਤਲਬ 80% ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 48। ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਐਸਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਆ ਐਸਪੀ ਹੈ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 48/80, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ 60 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 60 ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀਪੀ ਆ ਗਈ, 100% 60 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ 20% ਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 60 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 12, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 10%, ਤਾਂ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 6, ਤਾਂ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 12, ਤਾਂ 60 ਔਰ 12 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 72, ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 72, 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? हाँ ओवें भी कर सकते हो, सीधा 120 कर दो इत्थे, मतलब मैं वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 120 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 100% ਕੱਢਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 × 120 ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ 60 ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਪੀ × ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਐਸਪੀ, ਤਾਂ ਆ ਸੀਪੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਵੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 × 6 72 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 72 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? आई होप क्लियर है। अच्छा 9th करो, चलो 9th करो, चलो जल्दी करो, हो गया वेरी गुड। जिन्हों का नहीं होया कुछ फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड्स उन्होंने टाइम ले लैन दो, वो कर लें दो उन्होंने 9th, ठीक है ना, कर लेने आप सारे क्वेश्चन करने आराम नाल करांगे, बट 9th क्वेश्चन करो जी। फॉर्मूला तो अपने करना ही नहीं, पूरे मैथ च अपने फॉर्मूला कदे कीते, हाँ वो करांगे, वो फॉर्मूले मैं दसांगी, हाँ हाँ ओके। देखो वो की हुंदा है जदों सैलिंग प्राइस दो आर्टिकल दा सेम होवे और प्रॉफिट या लॉस भी दोनों दा सेम होवे, तो A² / 100 आ जांदा हुंदा।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 100 ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ 10th ਸਮ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 10th ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 9th ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 10th ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 990 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ 10%। ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 110%। ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 990। ਇੱਥੋਂ 100% ਮਤਲਬ ਸੀਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗੇਨ ਔਰ ਲਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 890 ਚ ਵੇਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਪੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 900 ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ 110 ਬਾਏ 990, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ 900 ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਣਾ 100 ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 900 ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸੀਪੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 900, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ 890, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 10%। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਣਾ 100। ਲਓ 1/9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 11.11 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 11.11 ਮਤਲਬ 1:1/9 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 10 ਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 119, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਸ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਉਲਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ 1:1/9 ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਆ 3 ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਿਰ ਉੱਪਰ 1 ਫਿਰ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 10ਵੇਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਜਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦੋ ਫਿਰ 9th ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ 10th ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 10th ਸਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। 10th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਓ ਔਰ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਈਚ। ਮਤਲਬ ਕਾਓ ਵੀ ਉਹਨੇ 12,000 ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚ ਖਰੀਦਿਆ 12,000, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਈਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 12,000 ਈਚ, ਮਤਲਬ 12,000 ਦਾ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ, 12,000 ਦੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਕਾਓ ਖਰੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੋਲਡ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ, ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 10%, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ % ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ 15%। ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸੀਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਏ, ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਆਈਟਮਸ, 3 ਆਈਟਮ, 4 ਆਈਟਮ, 5 ਆਈਟਮ, ਵਟਐਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਟਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੱਢ ਦੋ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਦੋ।
25/2 मतलब पूरी ट्रांजैक्शन ते ਉਹਨੂੰ 12.5% ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15% ਲॉस ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ -5/2 मतलब 2.5% ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ लॉस होगा। समझ आ गया। ये सिनेरियो उदों ही ये वाली चीज तुसी उदों ही इंप्लीमेंट करनी है। क्वेश्चन दी टाइप समझ लो, जदों सीपी दोनों दी सेम होएगी, प्रॉफिट दिता होवे दोनों च, लॉस दिता होवे, दो आइटम होण तीन, पर ये नहीं भी तुसी हमेशा दो नाल ही करना, एवरेज कढ़नी है। जिन्ने इत्थे पैरामीटर होणगे उन्ने नाल, जे 3 पैरामीटर ने 3 नाल डिवाइड कर दोगे, जे 4 पैरामीटर ने 4 नाल। एवरेज पता है ना की हुंदा एवरेज दा फार्मूला, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। अच्छा 10th सम हो गया ना सब दा, क्लियर है। अपना ये नोट कर लो, एक ना नोट बना के किते लिख लो कि वैन सीपी ऑफ 2 आइटम्स या 3 आइटम्स सेम और उन्होंने प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा जाए तो एवरेज कट दो, जेडे भी पैरामीटर थोनों प्रॉफिट या लॉस दिते हुए ने उन्होंने एवरेज कढ़नी हुंदी है, तो होल ट्रांजैक्शन ते प्रॉफिट या फिर लॉस है जेड़ा आ जाता। ठीक है, हुण देखो लो, चलो एक बार फिर समझ लो, थोड़ा डाउट आया। देखो उन्हें काओ और हॉर्स दी कोस्ट प्राइस दी हुई है और कंडीशन की है कि दोनों की कोस्ट प्राइस सेम है। पहली कंडीशन याद रखनी है कि जो दो आइटम्स की कोस्ट प्राइस की होवे सेम होवे और उन्हें थोनू चाहे तो दोनों फॉर्म च प्रॉफिट दे देवे, चाहे दोनों फॉर्म च लॉस दे देवे, चाहे एक प्रॉफिट एक लॉस दे देवे, चाहे पहला लॉस दूजा प्रॉफिट, चाहे 2 पैरामीटर होण 3 होण 4 होण। मान लो इत्थे 4 आइटम्स हुंदियां, चारां दी सीपी की होएगी सेम होएगी, ये कंडीशन लगन दे लिए तुसी की करना, उन्हें क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सारी ट्रांजैक्शन के उपर चाहे प्रॉफिट हो रहा चाहे लॉस हो रहा, दसो कितना प्रॉफिट परसेंट या कितना लॉस परसेंट हो रहा, ये चीज़ उन्हें क्वेश्चन पूछा है। तो तुसी ये वाली चीज़ यूज करनी है, जिन्ने भी इत्थे थोनों प्रॉफिट या लॉस दिता होएगा दोनों नू जोड़ दो। मान लो इत्थे दोनों प्रॉफिट ने, मैं 10 + 15 किया, इत्थे माइनस नहीं हैगा, माइनस कदों लगाना जो वो लॉस देगा। मान लो इत्थे कहता कि 15% लॉस होया, तो मैं की कहंदी 10 - 15 क्योंकि 2 आइटम्स ने डिवाइडेड बाय 2 -5/2 माइनस का मतलब की है कि उन्होंने 2.5% का की हो रहा लॉस हो रहा। पर इत्थे उन्हें की दिता होया सीगा दोनों च गेन, मतलब 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 25/2 कितना हुंदा 12.5%, क्योंकि इत्थे माइनस नहीं है तो की निकलिया प्रॉफिट, मतलब 12.5% उन्होंने प्रॉफिट है जिहड़ा होया। क्लीयर है? हुण देखो 11th ते 10th दे विच थोड़ा फर्क समझो। हुण की कह रहा सी, इत्थे उन्हें की लिखिया, ध्यान नाल वर्ड समझो। एक मैन ने चीज़ खरीदी, बाय कीती, बाय मतलब सीपी, पर अच्छा जी ओके हाँ जी हुण देखो जी क्लियर है, ओके ठीक है जी। हुण देखो इत्थे उन्हें की लिखिया होया सीगा कि बाय कीती, मतलब किहदी गल कर रहा सी, सीपी दी। इत्थे सीपी की सीगी, सेम सीगी। हुण देखो उन्हें की कहा इत्थे अ मैन सोल्ड, मतलब इत्थे की है सैलिंग प्राइस की गल कर रहा, उन्हें एक एक्टिवा और एक बुलेट नू सेम प्राइस के उपर सेल किया है। हुण इत्थे कंडीशन सी जदों सीपी की होवे सेम होवे, हुण इत्थे नवी सिचुएशन है जदों एसपी सेम होवे। ये देखो ये वाला फॉर्मूला समझ लो, जदों एसपी सेम होएगी और प्रॉफिट या लॉस भी की होएगा सेम होएगा 30%। दो कंडीशन ने, एसपी भी सेम होएगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी की होएगा सेम होएगा, तो चुपचाप करके A²/100 वाला फॉर्मूला लगा देना और हमेशा की होएगा उस बंदे नू लॉस ही होएगा। समझ आ गई? मतलब ध्यान समझो, जदों सैलिंग प्राइस 2 आइटम का बिल्कुल सेम होएगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम होएगा, देखो 30% है ना, ये भी सेम होएगा, तो ऑलवेज उस बंदे नू की होएगा लॉस होएगा। लॉस दे विच इत्थे क्यों ए दा की मतलब है, जेड़ा प्रॉफिट एंड लॉस है। हुण मतलब 30 × 30 बाय कितना लगा दो 100, मतलब उसनू 9% की होया
लॉस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? हाँ जी, आ देखो ना ए स्केयर है, ए की है जिहड़ा आ सेम वैल्यू है, क्योंकि ये सेम है ना ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ए ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਓ। ਤਾਂ ए ਸਕੁਅਰ 30 × 30 ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ 100। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ 9%। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ, ਤਾਂ 9% ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸ। ਗੇਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी की कह रहे हो? किमें मतलब कितने जीरो करती? हाँ बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होएगा, वो कदे एवें दी स्टेटमेंट पाएगा ही, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। जे 0% आ गया, मान लो जे मान लो कोई भी चीज़ से तुसी प्रॉफिट एंड लॉस कट रहे हो, सुनो और ਉਹਦਾ आंसर थोड़ा 0% निकलिया, वैसे बहुत रेयर चांस ने। मान लो जे 0% निकलिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ आ गई? पर एवें दा नहीं होगा कदे। लॉस के नाल नेगेटिव लाना साइन, हाँ लॉ जिथे नेगेटिव साइन आ गया तो मतलब की है लॉस हो रहा है, समझ आ गई? चलो हुण अच्छा अगे देखो, आ वाला कर लोगे ना। सेल किता उन्हें 12 रुपीज ईच। अच्छा 12th क्वेश्चन करो जरा, 12th क्वेश्चन करो, 12th क्वेश्चन करो, चलो करो। मैं क्यों दसा हूं, तुहानू दस तां दित्ता। अरे यार तुसी चार किदे भी सुनो ध्यान देना, चार की जेड़ा आ रहा किदे विच आ रहा परसेंटेज दी फॉर्म च। इत्थे की पुछया ने रुपीस दी फॉर्म च, दिमाग तो खोलो ना थोड़ा जा। 4% ਨੂੰ रुपीस च घुमाना पएगा, ट्राई करो घुमाण दी। हुण रुपीस च वैल्यू कढनी है, हुण तक तुहानू परसेंटेज वैल्यू कढनी आ गई कि 4% निकलिया है। हुण 4% ਨੂੰ कोशिश करो, जे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा हो किन्ने रुपीस दे हिसाब नाल पूछ ली ਉਹਨੇ वैल्यू, ट्राई तो करो ना। वैसे देखो मेरी गल सुनो, जे तुसी थोड़ा जा स्मार्ट वर्क करोगे ना, सुनो जे थोड़ा जा स्मार्ट वर्क करोगे ना तो ये तुहानू कड्ढण दी लोड़ नहीं पेगी, ठीक है। हुण ये तुसी दिमाग लाओ कि किद्दां, ट्राई करो जी 12th क्वेश्चन। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अरे यार लॉस दे विच ऑप्शन एक है, जदों ओनू 4% दा तुसी कढ लिया। देखो ना मेरी गल सुनो, आपां ने की लर्न किया सीगा कि इस केस दे विच हमेशा की होएगा लॉस होएगा। 3 ऑप्शन की ने गेन वाली, देखो नो गेन ते नो लॉस वाली तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपां नूं पता है कि हमेशा लॉस ही होएगा। इत्थे भी की हो रहा गेन हो रहा, इत्थे भी की हो रहा गेन हो ही नहीं सकता, तो सीधा चुप-चाप करके लॉस से टिक कर दो। केड़ा नन ऑफ दीज हैगा? कड्डांगे जी, कड्डांगे कड्डांगे कड्डांगे, वेट करो, ट्राई करो, थोड़ा खुद अपना दिमाग लाओ, करते आए भी आप। ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। अरे यार एक गेन एक लॉस है, एक गेन है एक लॉस है। वो सीपी सेम दी केस है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ सीपी सेम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 4% ਦੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ओके हाँ जी, किसी ने 1 रुपया कढ़िया, किवें कढ़िया दसो? 4% कितना निकले? अच्छा देखो हर एक जगह तो इफेक्टिव नहीं लगता होंगे, थोड़ा ध्यान रखियो, ये काफ़ी स्मार्ट तरीके नाल लाना पैंदा है, ठीक है। 4% 1200 दिता होया नहीं,
दो 1200 थोड़ी होएगा 24 हो गया ना हाँ सारी ट्रांजैक्शन ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ 4% ਤਾਂ 24 ਦਾ 4% ਕੱਢੋਗੇ 24 ਦਾ 4% ਕਿੰਨਾ 24 4% लॉस से तो मैं 96 का स्टूडेंट ले हाँ वेरी गुड ठीक है सही है 25 सीपी निकले ही तो 1 रुपए का की हो गया लॉस होगा ठीक है सीपी कितनी निकली है 25 निकली होएगी 25 है ना और जेड़ा अपना सेलिंग प्राइस है वो कितना निकला है 12 12 24 तो 25 और 24 दोनों ਨੂੰ माइनस कर लो कितना आ जाएगा 1 रुपए ठीक है दसा दोबारा की तय की गल हुई अच्छा चलो देखो आ जाओ अरे आ जाओ हुण छड़ दो देखो किवें कीता जी पहला तो आपां ओही अपना पेट फॉर्मूला आपां ने देख लिया कि दो आर्टिकल की सैलिंग प्राइस सेम है तो एक च गेन हो रहा तो प्रॉफिट भी सेम हो रहा तो आप B इंटू B बाय 100 कर देंगे और हमेशा की होएगा ये लॉस होएगा तो ये हिसाब नाल की हो गया लॉस हो गया 4% ठीक है हुण ध्यान नाल समझ लो इथों आपां नूं की पता होना चाहिए सीपी आप एवें करदे हुंदे आ एक एसपी हुंदा और इन्हां दोनां ते लॉस आपां नूं दे दिता उन्हें कितना 4% इत्थे तक समझ आ गया ये तो चीज़ समझ आ गई परसेंटेज वाइज लॉस हो गया हुण देखो इन्हां दोनों चों एक चीज़ तो चाहिए आपां नूं तां ही आपां कड्डांगे हुण इत्थे तुहानूं उहने की कीता दो पाइप्स का सैलिंग प्राइस दिता होया 12 रुपए ईच तो टोटल सैलिंग प्राइस कितना होएगा 24 समझ आया कि नहीं हुण 24 का 4% कितना होएगा नहीं ये देखो एवें कट लो ना सुनो ध्यान नाल सैलिंग प्राइस हाँ 96% एवें कट लो ना देखो ये जिहड़ी वैल्यू है ये किन्ने परसेंट दी होएगी 96 वेरी गुड 96 परसेंटेज वाइज और रुपीज वाइज 24 1% की वैल्यू कितना होएगा 24 चार ही अंदर 1/4 इंटू की कर लो 100 तो 100% की निकलिया है अपना 25 मतलब 100% की हुंदा सीपी तो सीपी कितनी निकलिया 25 सैलिंग प्राइस कितना निकलिया 24 तो लॉस किन्ने रुपए दा होया 1 रुपए दा परसेंटेज वाइज किन्ने दा होया 4% रुपीज वाइज किन्ने परसेंट रुपीज वाइज किन्ने दा होया 1 रुपए दा क्लियर है समझ आ गया ना इजी सीगा कुछ भी नहीं सीगा चलो अगला क्वेश्चन करो फिर हंसो ना किदा सॉरी कि मैं कह रही हूँ 1 मिनट प्लीज कीप क्वाइट हाँ जी की कह रहे हो आ वाला अच्छा चलो 12th क्वेश्चन किसी ने रिपीट करने लिए किया जिन्हों समझ आ गया बहुत अच्छा आगे कर लो जिन्हों नहीं समझ आया दोबारा देख सकता पर आवाज ना करो देखो वो कहंदा सीगा ये तो समझ आ गया कि a² / 100 हुंदा राइट आपां करदे हुंदे आ इत्थे सॉरी लॉस होएगा तो आपां ने की किया 20 इंटू 20/100 तो इत्थों मैनू समझ आ गया कि लॉस परसेंट कितना है 4 ठीक है हुण अपने पास 3 चीज़ां हुंदियां ने एक हुंदी है सीपी एक हुंदी है एसपी इत्थे आपां नूं की दिता होया लॉस परसेंट कितना 4% ठीक है हुण आपां नूं दोनों चों एक चीज़ पता होनी चाहिए इत्थे दित्ती हुई है इत्थे सोल्ड दिता होया मतलब एसपी की गल हुई है तो गल कीती गई है होल दे उपर मतलब पूरी ट्रांजैक्शन के उपर या प्रॉफिट जिहड़ा लॉस होएगा तो पूरी ट्रांजैक्शन की सैलिंग प्राइस कितनी होएगी 24 जे 12 एक दी है तो 12 दूसरे दी भी होएगी सेम है तो 24 रुपए की हो गया अपना सैलिंग प्राइस हुण सैलिंग प्राइस दे विच लॉस की हुंदा हमेशा इनक्लूडेड हुंदा ये तो पता है ना जे बेचेगा तो ही प्रॉफिट या लॉस कमाएगा ना तो लॉस होया 4% दा वैसे चीज 100% दी सीगी लेके आया पर 4% लॉस के हिसाब नाल बेची तो परसेंटेज वाइज किन्ने परसेंट दी बेची 96% 4% लॉस रुपीज वाइज किन्ने दी बेची 24 दोनों बराबर करते समझ आ गया 1% की वैल्यू कितनी होगी 24/96 ते 100% जो निकला है मतलब सीपी निकले 100% की हुंदा सीपी गुना 100 24 चौका कितना हुंदा 96 1/4 परसेंटेज की हुंदा कितना हुंदा 25 ता 100% की वैल्यू कितनी निकली मतलब सीपी कितनी निकली 25 ता हुण देखो उन्हें पूछ लिया सीगा रुपीज की फॉर्म च किन्ने दा लॉस होया चीज़ वो 25 रुपए की लैके आया 24 रुपए की बेची किन्ने रुपए का घाटा खाया 1 रुपए का तो लॉस ऑफ ₹1 ऐदा निकलिया है वैसे कड्ढन की जरूरत नहीं पेपर च आपको इत्थे नो गेन है तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं क्योंकि गेन तो होना ही नहीं आपको पता है कि ऐदा की कंडीशन हमेशा की होएगा लॉस होएगी तो तुम इत्थों ही कढ़ सकते हो ठीक है ऑप्शन के विचों ही चक सकते हो बट वैसे कंसैप्ट अपना समझने के लिए थोड़ा ये चीज़ पता होनी चाहिए है ठीक है चलो 11 क्वेश्चन करो जी
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਹਜੇ क्वेश्चन ਨੂੰ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ 15ਵਾਂ क्वेश्चन ਹਜੇ ਛੱਡ ਦੋ प्लीज, 14th क्वेश्चन लीव कर दो। 14 ਆ ਵਾਲਾ, ਸੌਰੀ 13। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ 4% ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 96 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ 4% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 96 ਸਮਥਿੰਗ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਔਰ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਔਰ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਐਸਪੀ ਟੂ ਸੀਪੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 5/3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਸਪੀ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਪੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ, ਐਸਪੀ ਕਿੰਨਾ 5 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 33.33, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 66.66%। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਐਸਪੀ ਔਰ ਸੀਪੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਢਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਹੈ 9/7, 7 ਕੀ ਹੈ ਸੀਪੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस, मतलब 2 रुपए का की होया प्रॉफिट, किहदे ऊपर कट दिया प्रॉफिट हमेशा सीपी, सीपी केड़ी है नीचे वाली कट लोगे, ठीक है। हुण देखो एसपी किन्ना 6, सीपी किन्ना, हाँ मतलब प्रैक्टिस लिए दिते हुए ने, ठीक है। हुण देखो ये की है 6 7, हुण देखो लॉस होया है प्रॉफिट होया, लॉस किहदे ऊपर कैलकुलेट करांगे 7, 1/7 कितना हुंदा 14.28% है ना। वैसे जे नहीं है 100 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड कर लियो 14.28 निकल आएगा, ठीक है। तो ऐदा करके ये सारी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जस्ट एक प्रैक्टिस ਦੇ लिए भी ਤੁਹਾਨੂੰ रेशो वाइज सैलिंग प्राइस और ਜਿਹੜਾ अपना कोस्ट प्राइस है वो देखना आ जाए, क्लीयर है समझ आ गया ना। हुण मतलब जिवें तुहानूं एवें रेशो आ गई जदों तुहाडे पास तुसीं समझ लेना नीचे वाला हमेशा सीपी होएगा, ऑलवेज सीपी, ऊपर वाला हमेशा की होएगा सेलिंग प्राइस, क्लियर है। कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं, अच्छा वो क्वेश्चन होर हो गए, वो चीज़ ये थोड़ी है, वो ग्रेटर वाले कह रहे हो तुसीं 1/2 1/3 छड़ दो, वो तो तुसीं कढ ही लओगे। P++ ਵਿੱਚ खुला टाइम ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ 0.something ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ, इधर देख लो की कर रहे हो, आ 16th करवा रही है, वो तो समझ ही गए भी बेसिक की है। इधर देख लो ਜਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉਲਟੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 5 ਔਰੇਂਜਸ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ एक्साइज तुसी मन के चल सकते हो भी एवें दे क्वेश्चन आंदे ने, P++ ਦੇ प्रीवियस पेपर चक के देख लियो मिलणगे ਤੁਹਾਨੂੰ एवें दे क्वेश्चन। ਹੁਣ देख लो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ रेशो बना के करांगे किवें, देखो की कह रहा हो, कहंदा सैलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस दा सैलिंग प्राइस किदे बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस, और दसो गेन होया या लॉस होया, किवें करांगे। अच्छा ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
SP ऑफ किन्ने ऑरेंजेस 5 नहीं इधर लिख लो मैं ਉਹਦੇ 5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ठीक है 40% लॉस अच्छा ठीक है सही है ठीक है हाँ हाँ बहुत सही है 5 ऑरेंजेस ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ऑरेंजेस ਦੀ CP ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ਗਲਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ याद रखियो ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆ ਹੋਏਗਾ मतलब CP ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ SP by CP SP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ SP ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3 ਔਰ CP ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5 ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ लॉस अरे सीधा ही है इन्ना भी की सोचन लग गए 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ 60 ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਾ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ 2% ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ CP ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ 100 5 ਦੂਣੀ 50 10 5 ਦੂਣੀ 50 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 40% ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 40% ਗੇਨ ਨਾ ਟਿਕ ਕਰ ਆਇਓ ਫਲੋ ਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 40% ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 40% ਲਾ ਦੋ ਟਿਕ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 40% ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 40% ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ मतलब ਸੇਲਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੁਪੀਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ मतलब ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ CP ਦੇ ਉੱਪਰ मतलब 2/5 ਅਪਨ ਕਿੰਨਾ 100 ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ 1/5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20% ਪਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 40% ਤਾਂ 40% ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਾਸ क्लियर है आया समझ हाँ जी की कह रहे हो हाँ जी आ देखो इतने समझाया ना इतने समझाया उन्हें की किया सीगा ध्यान नाल समझो एक बार फिर समझ लो कि 5 ऑरेंजेस दा सेलिंग प्राइस किदे बराबर है 3 ऑरेंजेस दे कॉस्ट प्राइस दे आ दोनों चीज़ां इक्वेट करती आपां ने तां इत्थों तुसीं रेशो कढ सकदे हो ठीक है रेशो किवें कड्ढी रेशो कढनी आपां सेलिंग प्राइस अपॉन CP है ना तो सेलिंग प्राइस दे सामने की है 3 तो CP दे नीचे की आ जाएगा सामने 5 मतलब रेशो निकले सेलिंग प्राइस ते कॉस्ट प्राइस दी 3/5 तो इत्थों तुहानूं पता लग गया 5 रुपए दी उन्हें चीज़ खरीदी है पिछों लैके आया 3 रुपए की बेची है तो 2 रुपए उन्होंने की होया लॉस होया लॉस और ਆਪਾਂ प्रॉफिट किहदे उपर कैलकुलेट करते हैं हमेशा CP ਦੇ ਉੱਪਰ परसेंटली अपने 100 लगाता तो आपने कढ़ लिया कि 40% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ लॉस होया क्योंकि अपन इत्थों समझ आ रहा कि ये लॉस है ठीक है क्लियर है चलो अगला करो फिर क्वेश्चन 17th क्वेश्चन फायदा हो रहा है जी इस चीज का समझदार की बोलिए दाल नहीं बंदा समझदार है फायदा होता है अच्छा चलो 17th करो जी हुन सी ऑप्शन 7 ओके बाकी देख वो सारे गलत करो जी 17th क्वेश्चन करो हो गए जिन्हों का हो गया 18th कर लो जिन्हों का 17th हो गया 18th करो हाँ जी की आंसर आ रहा है इहदा 17 का सी आ रहा सी कह रहे हैं जी बाकी आंसर नीचे है गया चेक कर लो 17th का सी कह रहे हैं जी
ट्राई करो जिन्हों का नहीं आया। हो गया जी सर, हो गया। गल्ला नहीं मारनी, अगला करो 18th 20 क्वेश्चन का करो ना अज तसल्ली नाल। चलो चलो पहला 18 तक तो पहुंचो तुसी। हो गए साहिल जी? 18वां करो, बेली क्यों बैठे हो? किवें जेब च हथ पाया? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 18वें ਦਾ पता नहीं की आ रहा, देखो ਮੈਂ ਕਰਦਾ देखो 18th ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 46 18th ਦਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा हाँ जी 18th करवाने हैं। 17th हो गया सबका? हो गया हाँ जी, पक्की गल है, सिंपल ही है। एक बार दस देनी है बेसिक जा, फिर रिकॉर्ड हो रहा है। देखो की कह रहे हैं, सैलिंग प्राइस 9 मीटर क्लॉथ का सैलिंग प्राइस इज इक्वल टू है 12 मीटर ऑफ सीपी। तो एसपी और सीपी की रेशो आ गई कितनी? 12/9। मतलब उन्हें 9 रुपए दे विच चीज़ लैके आया सी, 12 च बेचती, किन्ने दा प्रॉफिट होया? 3 रुपए का। किहदे उपर कैलकुलेट करोगे? तो इत्थों कढ लिया तुसी, कितना आ गया? 1/3। 1/3 की परसेंटेज की हुंदा? 3.33%। ठीक है। बाकी जिन्हों नहीं आंदा वो 100 नूं की कर लो 3 दे नाल। देखो इनू 1 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, इनू कीता 3/9, इत्थे फिर आ गया 9, फिर करोगे 3 आएगा। मतलब 33.33% की आएगा? गेन आएगा। गेन आपां नूं किवें पता लग गया? क्योंकि आपां ने देख लिया कि उन्हें सैलिंग प्राइस सेल ज़्यादा दी कीती चीज़ और खरीदी किन्ने दे विच सीगी? घट दे विच खरीदी सी। क्लीयर है? चलो अच्छा हुण 18वां सम हो गया। अरे देखो मेरी गल सुनो, 18वीं सम च तुहानूं की डाउट आ गया? इक्वेट नहीं कर पा रहे हो, कित्थे गया? देखो 18th सम दे विच थोड़ा ध्यान नाल सोचो। उन्हें की किया? देख लो इधर, कहंदा रवि ने कुछ टॉफीज बाय कीतियां फॉर 4 ₹3। देखो ध्यान नाल समझो, इत्थे तुसी एक टॉफी दा कढ लो ना, एक टॉफी दी कॉस्ट प्राइस कढ लो, एक टॉफी दी सैलिंग प्राइस कढ लो। जो ये चीज़ पता लग गई तुसी कढ लोगे सिंपल। हुण देखो ध्यान दे नाल, कहंदा रवि ने 4 टॉफीज बाय कीतियां। मैं लिख के दिखा रही हूं, तुसी लिखना नहीं हैगा पेपर च। 4 टॉफीज किन्ने दी बेचियां? 3 रुपए दियां, है ना? तो एक टॉफी किन्ने दी लेगा? 3/4। एक टॉफी का मतलब रुपीज दे विच रेट कितना आ गया? 3/4। ये तो चीज समझ आ गई। हुण अगे की कह रहे आ, ये सीगी अपनी सीपी, क्योंकि उन्हें बाय कीतियां, खरीदियां स्टार्टिंग च। उस तो बाद उन्हें अगे की कर दित्तियां? सेल कीतियां। सेल कीतियां मतलब सीपी। 5 टॉफीज उन्हें किन्ने दियां बेच दित्तियां? 2 रुपए दियां। तो एक टॉफी किन्ने दे बराबर हो गई? 2/5 रुपीज। ये की हो गया अपना सैलिंग प्राइस। इत्थे तक समझ आ गया? रेशो कढ लो, की चक्कर है? की हुंदा? सैलिंग प्राइस अपॉन सीपी। सैलिंग प्राइस कितना? 2/5। लो मैं लिख लिया। हुण अगे नीचे की होगा? सीपी। सीपी कितना? 3/4। 3 में नीचे लिख लो तो 4 कितने चला जाओ? ऊपर। तो कितना हो गया? 8/15। तो मतलब उन्हें जेडी टॉफी बेचियां सीगियां, किन्ने दी बेची? 8 और खरीदियां किन्ने दियां? 15। किन्ने दा लॉस होया? 7 रुपए का। किहदे उपर? 15 दे उपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। 3 140/3। तो इनू कर लो 3 4 आही आएगा। 4 वाली एक ही ऑप्शन है, कड्डन की भी लोड़ नहीं। थोड़ा स्मार्ट गेम अपने चलना। आ वाला जी कह रहे हो? आहा देखो ਇਹਦਾ समझ आ गया कि एक टॉफी का जिहड़ा कोस्ट प्राइस 3/4 है। देखो ना मेरी गल सुनो, जदों तुहानूं कोस्ट प्राइस पता और सैलिंग प्राइस पता, तुसीं उहदी रेशो कढ लो, ਤੁਹਾਨੂੰ रेशो तो पता लग जाएगा। हुण इत्थे तुसीं इहनूं पॉइंट्स दे विच कैलकुलेट करन दी बजाय, हुण देखो वैसे कढ तुसीं एवें भी सकदे हो, इहनूं तुसीं पॉइंट्स कढ लो। मान लो 0 पॉइंट समथिंग निकलिया आ, ਇਹਦਾ भी 0 पॉइंट समथिंग निकलिया आएगा। उत्थों तुहानूं की पता लग जाएगा? प्रॉफिट ते लॉस का पता लग जाएगा।
समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो ये 12 निकले आया है, 15 निकले आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ SP ਅਪੋਨ CP ਕੱਢ ਲਓ। SP ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 2/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CP ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 2/5 ਸੌਰੀ 3/4, ਤਾਂ CP ਕੀ ਆਏਗੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ 3 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢੋਗੇ 15 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਢੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3/4 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋਗੇ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕੱਢੋਗੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 0 ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 0.2 ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਇਹ 0.3 ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਕੱਢੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ CP ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਡੈਸੀਮਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ऑफ 9 मीटर क्लॉथ्स इज इक्वल टू CP। ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 9 मीटर क्लॉथ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस 12 मीटर ऑफ CP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, मतलब चाहे ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ B ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ 12/9 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ CP ਤੇ SP ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। 4 for rupees 3, 5 for rupees 2, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੁਪੀਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰੁਪੀਸ ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੀਦਾ। ਰੁਪੀਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਰੁਪੀਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਰੁਪੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ, चलो करो 19 और 20, जल्दी करो जी। 19, 20, 21, 19, 20, 21 तीनों थोड़े करन वाले क्वेश्चन ने, जल्दी करो। 3 मिनट ने, 3 मिनट च 3 क्वेश्चन होने चाहिए ने, काफ़ी ज़्यादा ने। वेरी गुड। 19, 20 and 21। 19 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸ ਦਾ? 19 ਦਾ C, ਹਾਂਜੀ C ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। हाँ हमेशा चीज़ा ही बराबर करनी है, पैसा नहीं कभी बराबर करना, फिर तो अमीर गरीब खत्म हो जाएंगे सोसाइटी से। ठीक है ना, चीज़ा ही हमेशा बराबर करनी है। बस वेट कर लो, वेट कर लो, बस 5 मिनट और। हो गया जी, 19th क्वेश्चन हो गया सब दा, किसी को कोई डाउट था नहीं? ओके 20th क्वेश्चन 20% गेन है जी उस च ਇਹਦਾ 19 ਦਾ ਆਨਸਰ C ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, 20% आई थिंक ਜ਼ਰੂਰਤ। अच्छा थोड़ा नहीं होया, लो देख लो जी जिन्हों का नहीं होया। की कह रहे हैं, आ फ्रूट सैलर बाइज लैमन एट 2 फॉर अ रुपी, मतलब उन्हें की किया है जी, 2 लैमन बेचे हैं, किन्ने दे? 1 रुपए दे, है ना, यही कह रहे हैं।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚੇਗਾ 1/2 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ सेलर बाइज, हाँ बाई किया ना उन्हें, तो ये सीपी है, ये की निकलेगी अपनी सीपी। अच्छा उस तो बाद अगला की कह रहा तो उन्हें अगे बेच दिते 5 लैमन 3 रुपए दे, 5 लैमन उन्हें किन्ने दे बेचे 3 रुपए दे, तो एक लैमन किन्ने दा होएगा 3/5 है ना। ये की निकले ही अपनी एसपी, बस निकले आया क्वेश्चन एसपी बाय सीपी रेशो कट लो, ये कितना होएगा 3/5 ਤੇ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 2 ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ 6/5 ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਐਸਪੀ ਬਾਈ ਸੀਪੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੇਨ, ਤਾਂ ਗੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ 5 × 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20%, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ, ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 11 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ठीक है, ये भी करो, हो गया 20th सब दा। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 20th ਦਾ 33 ਦੇ ਪਰ 11 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, मतलब B ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 4/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੰਫਰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਲਓ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰड्स करो, जल्दी करो ਲਾਲਾ ਪੜ ਦੇ करो 20th क्वेश्चन करो, जल्दी करो, बस 20 तक ही करने ਅੱਜ 20 तक ही करनी है। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਉਹ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਦੇ 20 ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਰੋ ਜੀ 20th क्वेश्चन 20 ਆ ਰਿਹਾ ਓਕੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 20 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ 33 ਮੀਟਰ ਕਲੌਥ ਦਾ, ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ 33 ਮੀਟਰ ਆਫ ਕਲੌਥ ਰਮੇਸ਼ ਗੇਨ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਿੰਨਾ 11 CP, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ SP ਬਾਈ CP ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 11/33 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੇਨ 22 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ 33 ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਮੰਨ ਲਓ 11 ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਓ 20% ਮੈਮ ਸ਼ਾਰ 33.33 हाँ 11/33 नहीं देखो SP ਤੇ CP ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। 11/33 बन रही है ना, यही बनेगी। 1/3 मैम एसपी को तो गेन है जी 11 गेन है 11 इंक्लूडेड गेन 11 पॉइंट बाई नहीं होना चाहिए सरप्लस है 11 पॉइंट बाई आ रही है वो 11 है जी 50% है मैम आंसर। ओके ठीक है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 11 ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ SP ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 44/33। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 44 ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ मैं कितना ही मैं 11 डिफरेंस समझ नहीं आया गेन है वेट ਇਹ 33 ਹੋਏਗੀ ਆ 22 ਹੋਏਗੀ 44 एसपी बन ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 33 ਹੋਏਗਾ, CP ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 22 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ गेन 11 ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ 22 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 1/2 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 50%। D ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, B के हिसाब ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। आंसर कितना है ये पोस्ट प्राइस 22 की में आएगी। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।